So we'll begin with section 319 of the CRPC. This stage is very important if you want to know what to do in a situation where the true offender or the true person who has committed a crime is yet not before the court, and he has neither been named in the charge sheet nor in the FIR nor in a complaint, etc. What would you do in that situation? For that purpose, we have section 319 of the CRPC. So before I begin reading section 319's Where Act provision and tell you what are the important keywords in it, I should first tell you what is the object. What is the maxim on which section 319 is based on? It is based on the maxim Judex damnata cum nocens absolvita. A judge is condemned when a guilty is acquitted. You might have heard me saying that there is a cardinal rule of criminal jurisprudence that even though 10 guilty may escape, one innocent person should not be punished. That's true. But at the same time, judge will also be condemned, and he will not withstand the scrutiny of the society, and he will be instrumental in making society lose faith in the judicial system if he acquits the guilty person. So it is a balancing act. CRPC is balancing both the things. At one point it is saying that yes, it is better to acquit than convict if you have a doubt, and an innocent man should not be convicted even though 10 guilty may escape. That's true. But at the same time, the judge must also bear in mind that even though he can acquit 10 guilty, but he'll be condemned if even one guilty is acquitted. He'll be condemned by whom? He'll be condemned by the society. The society will lose faith in judicial system. The society will think that the judicial machinery is nothing but an instrument of oppression where the guilty may buy justice and the innocent person suffers trial throughout the period of his life. That might be the perception. That situation, in order to get over that situation where the court on the matters of evidence before it considers that there is a true offender who is not on record, he has not been named in an FIR, he has not been named in a complaint, he has not been named in the charge sheet, given any scenario, and during the course of inquiry or trial, on the basis of evidence that appears before him, he considers that such person is also involved in commission of offence, then he may, by the virtue of section 319, summon such person or get him arrested and make him stand trial before the court which is trying the case. Alright, so this is a very important provision. ये आप लोग को जानना चाहिए, and unanimously sessions trial पे भी apply हो सकता है, ये आपके warrant trial या magisterial trial पे भी apply हो सकता है. That is not a thing कि कौन करेगा या नहीं करेगा. The thing is कि इसको कब करना चाहिए. Any court can do so. Any court trying any offence can do so. Can resort to section 319. क्योंकि purpose of section 319 is only to make sure that the guilty person, if it appears from evidence that some other person is involved in the offence and he might be guilty of such offence, so in that scenario the court can summon such accused person, summon such person and make him stand trial before itself. Let us suppose a situation कि A is a son of politician. He has committed a crime. Let us suppose a crime of murder. And when he committed the crime of murder, he was with his friends. All of his friends were arrested. Yet because A was a very influential person, and since he was a son of a politician, due to that he was able to buy off police also and his friends also, and threatened everyone with a dire consequence who might take his name.
before the court. So what happens कि police never mentions him in the charge sheet. A's name is also not mentioned in an FIR. None of the A's friends also tells before court that it was actually A, not us, who committed the offense. They remain silent. Yet, when evidence appears before the court, let us suppose the family of the deceased, they say that A, son of that particular politician, was also there, but he has not been named in an FIR because of malified exercise of police, and A's friends are also not mentioning him because they are afraid of him, and he has threatened me with dire consequences if I mention his name, and he has influenced the investigation in his favor. Let us suppose he says that before the court. So in that situation, the court may resort to section 319 and summon that ape to stand trial before itself. तो ये जो प्रोविज़न है, इट इज़ अ वेरी हेल्दी प्रोविज़न, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको मैकेनिकली एक्सरसाइज करेंगे. एक्चुअली arraigning an accused to stand trial before itself is a very strict provision, and it has some dire consequences, because the liberty of the accused must not be interfered with on the basis of whimsical or capricious evidence or an arbitrary exercise of power. It should be based on very cogent and reasonable grounds. That is why section 319 has used the word evidence. So before I elaborate on section 319, we'll first read the section. The power to proceed against other persons appearing to be guilty of offence. Where in a course of an inquiry into a trial of an offence, these are the important keywords, it appears from evidence is the important keyword, that any person not being the accused has committed any offence for which such person could be tried together with the accused. The court may proceed against such person for the offence which he appears to have been committed. तो एक बात का ध्यान रखिए, CRPC उसको other person कह रही है, accused नहीं कह रही है. क्यों? It is very simple. Because accused is a person whose name appears on the case, whose name appears on the record, who has been named in a charge sheet or an FIR, or against whom the charge has been framed. Alright. So, and if a person who has neither been named nor his name appears anywhere else on the record, he cannot be called an accused. He'll be called a person. तभी उसे CRPC a person बुला रही है, rather than using the word accused. So know this, the terminologies are very particular when we are using this word. जब भी आप ध्यान रखें कि accused शब्द का यूज हुआ है, तो जान लीजिए कि कोई ना कोई accusation FIR या 161 के स्टेटमेंट या चार्ज शीट या चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज पे वो इंक्लूड होगा, ऐसा व्यक्ति आएगा ही आएगा. एंड a person against whom the allegation has been made that he has committed an offence, वो accused कहलाता है. लेकिन जिस person के खिलाफ कोई allegation नहीं दिया गया है, तो उसको आप accused नहीं बुला सकते. तो CRPC उन लोगों के लिए है जिनका नाम कहीं नहीं आया है. There neither has been named as an accused on the record of the case, and neither they have been mentioned before the court. बट एक ऐसा एविडेंस कोर्ट के सामने आता है जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि एक ऐसे पर्सन ने भी ऑफेंस किया है जो मेरे सामने नहीं है, देन ही कैन समन सच पर्सन. तभी पर्सन शब्द का यूज है. और जब एक बार समन कर लेगा 319 में, तो वो पर्सन क्या बन जाएगा? तब वो पर्सन अक्यूज्ड बन जाएगा. वेयर सच पर्सन इज नॉट अटेंडिंग द कोर्ट, ही मे बी अरेस्टेड और समन्ड. तो अरेस्टेड और समन्ड मार्क कर लीजिए. As the circumstances of the case may require for the purpose aforesaid. Any person attending the court, although not under arrest or upon summons, may be detained by such court for the purpose of inquiry into a trial of an offence which he appears to have been committed. अब ऐसा person ना अरेस्ट से आ रहा था ना समन से था, वो बस मान लीजिए रोज कोर्ट आता था प्रोसीडिंग्स देखने, और प्रोसीडिंग मान लीजिए वो सिर्फ इसलिए देखने आता था क्योंकि वो ये इंश्योर करने चाहता था कि कहीं उसका नाम तो नहीं लिया जा रहा है कोर्ट में,
अब वो मान लीजिए बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, बहुत बड़ा गैंगस्टर है जिससे सब लोग डरते हैं, तो उसका नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई विक्टिम आके, कंप्लेनेंट आके या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आके कोर्ट में उसका नाम ले लेता है कि हालांकि ये लोग भी इन्वॉल्व थे, बट चार्जशीट से इनका नाम पॉलिटिकल प्रेशर से एक्सक्लूड किया गया, लेट अस सपोज. So in this situation, even though he was neither summoned nor arrested, he was voluntarily coming before the court, then in that situation also the court may detain him. अब subsection 4 क्या कहता है 319 का? Where the court proceeds against such person under subsection 1, then proceedings in respect of such person shall be commenced afresh and the witnesses reheard. ये तो इम्पोर्टेंट है. शैल बी कमेंस्ड अफ्रेश एंड द विटनेस रीहर्ड. शैल शब्द का यूज हुआ है. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इट्स अ मैंडेटरी प्रोविजन, नॉट अ डायरेक्टरी प्रोविजन. बी क्या कहता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ क्लॉज ए, द केस मे प्रोसीड एज इफ सच पर्सन हैज बीन अक्यूज्ड व्हेन द कोर्ट टुक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अपॉन विच द इंक्वायरी और ट्रायल वाज कमेंस्ड. तो ये एक्चुअली उस सिचुएशन के ऊपर सेल थ्रू करने की कोशिश की है लेजिस्लेचर ने कि ऐसा टेक्निकल ग्राउंड कोई जिससे ना ले पाए कि मेरे खिलाफ तो कॉग्निजेंस ही नहीं लिया गया था, ये केस में तो अक्यूज ये थे, मेरे पर्टिकुलर आदमी के खिलाफ कैसे कॉग्निजेंस लिया जा सकता है. तो क्योंकि मेरा नाम कहीं नहीं है तो मुझको लेके स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट भेजनी चाहिए, उस चार्जशीट पे कॉग्निजेंस होना चाहिए, तब जाके ही आप मुझे क्या कहते हैं मुझे ट्रायल पे स्टैंड करवा पाएंगे. तो उसका आंसर है नहीं. अगर आपको कॉग्निजेंस का ही कंसेप्ट याद है, कॉग्निजेंस इज टेकन ऑफ द ऑफेंस नॉट द ऑफेंडर. ऑफेंडर है या नहीं उधर जजमेंट पे पता चलेगा, लेकिन एक तो कॉग्निजेंस केस की ली जाती है. तो ये जो क्लॉज भी है इसने बेसिकली उसी टेक्निकल ग्राउंड को हटाने के लिए यही बोल दिया गया कि ये मान लिया जाएगा कि जब कोर्ट ने कॉग्निजेंस ली थी तो वो अक्यूज्ड पर्सन था. ऑल राइट. तो ऐसे कोई टेक्निकल ऑफेंसेस, टेक्निकल ग्राउंड्स रेस करने के लिए नहीं अलाउ होंगे. That is why the legislature has written the case may proceed as if such person had been an accused person when the court took cognizance of the offence upon which the inquiry or trial was commenced. तो शुरुआत की स्टेज से वो चलेगा, माना जाएगा कि वो शुरुआत की स्टेज से ऐसा था. अब देखिए इससे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जजमेंट है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट जजमेंट जो इस पे है वो है हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. क्योंकि ये जजमेंट पहली बात है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का है. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट वो होते हैं जो 5 या 5 से ज़्यादा की स्ट्रेंथ के होते हैं. तो मतलब 5 जजेस बैठे थे टू डिसाइड द क्वेश्चन इन हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और इन्होंने कुछ क्वेश्चंस का आंसर दिया था. वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो 319 का पूरा स्कोप डील करते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी क्यों इस केस में? वो बनी इसलिए क्योंकि बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स थे सुप्रीम कोर्ट के ही आपस में. कोई जजमेंट कुछ कह रहा था, कोई जजमेंट उसका ऑपोजिट कह रहा था. तो हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी जिसने इस इशू को पूरी तरीके से सॉर्ट आउट कर दिया. तो पहला सवाल जो उसने आंसर किया, जो पहला सवाल था उसके सामने, वो ये था कि व्हाट इज द स्टेज एट विच द पावर अंडर 319 CRPC कैन बी एक्सरसाइज. किस स्टेज पे एक्सरसाइज कर सकते हैं? तो आप अगर पढ़ेंगे सेक्शन तो आपको बोलेगा इंक्वायरी या ट्रायल इनटू एन ऑफेंस. और दूसरा क्वेश्चन जो इसी के साथ जुड़ा हुआ था कि व्हाट इज द स्टेज एट विच द पावर अंडर 319 कैन बी एक्सरसाइज्ड and whether the word evidence used under 319(1) CRPC has been used in a comprehensive sense and includes evidence collected during investigation, or the word evidence is limited to evidence recorded during the trial. तो दो सवाल एक साथ डील किए थे सुप्रीम कोर्ट ने. इस पे पहला सवाल क्या था कि किस स्टेज पे एक्सरसाइज होगा, और दूसरा सवाल कि जो एविडेंस है इसके अंदर, जिस एविडेंस शब्द का जो यूज किया गया है, उसमें क्या वो एविडेंस आता है जो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे भी होता है, या सिर्फ वही एविडेंस इसकी कैटेगरी में आता है जो ट्रायल की स्टेज पे कोर्ट के सामने रिकॉर्ड किया जाए. तो सुप्रीम कोर्ट ने यह आंसर किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो धर्मपाल के केस में बनी थी हैज ऑलरेडी हेल्ड दैट आफ्टर कमिटल
cognizance of an offence can be taken against the person not named as an accused, but against whom the materials are available from the papers filed by the police after completion of investigation. If you remember, जब मैं आपको 193 का कॉग्निजेंस पढ़ा रहा था तो मैंने धर्मपाल के केस, धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा से डील किया था, जिसमें बोला था कि द मोमेंट द मैजिस्ट्रेट commits the case, the bar under 193 is removed, and by resorting to 319 he can summon such person whose name does not appear on the record, yet the judge believes that he has committed an offence. या चार्जशीट के सेकंड कॉलम में उसका नाम फॉल करता है. चार्जशीट के सेकंड कॉलम में बेसिकली ये मतलब है कि वो उसके खिलाफ फाइनल रिपोर्ट भेजी गई है. तो ऐसे व्यक्ति को 319 में भी समन कर सकता है अगर वो चाहे तो. सो द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि ये जो इंक्वायरी की स्टेज है ये बहुत ही होलिस्टिक सेंस में ली जाएगी, क्योंकि जब कमिटल के बाद की ही स्टेज को मान लिया है धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट ने कि कमिटल की बाद की स्टेज पे ही आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हो, देन व्हाई कांट यू एक्सरसाइज एट एनी अदर स्टेज. इतनी इंसेप्शन पे अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो आप किसी भी स्टेज पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर वो इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए. तो कोर्ट ने बोला बड़ी स्पेसिफिकली कि ट्रायल तो चार्ज फ्रेम के बाद कमेंस होता है, पर इंक्वायरी अगर समझना है तो उसके लिए प्री ट्रायल इंक्वायरी है. देखिए सीआरपीसी ने भी 2G में कहीं इंक्वायरी डिफाइन नहीं किया है. ये बोला इंक्वायरी कोर्ट या मैजिस्ट्रेट कर सकते हैं, पर वो ट्रायल नहीं होता. सो यू आर वेरी कंफ्यूज्ड. तो मैंने आपको सेशंस जब सीआरपीसी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको शुरुआत में ही बहुत बताया था, शुरुआत के लेक्चर में, कि अगर मान लीजिए केस पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूटेड है तो इन्वेस्टिगेशन के बाद जब चार्जशीट भेजता है तो जो बीच का पीरियड होता है, क्योंकि अब पुलिस तो कुछ कर नहीं रही, तो मैजिस्ट्रेट जो है वो इंक्वायरी भी कंडक्ट करता है. सो द स्टेज इज कॉग्निजेंस के बाद भी इंक्वायरी होती है. ट्रायल से पहले जितनी भी स्टेज है, जैसे डिस्चार्ज वाली स्टेजेस हैं, ये सब इंक्वायरी की स्टेज होती है. तो पुलिस रिपोर्ट का अगर मैं एग्जांपल लूं तो एफआईआर से लेकर चार्जशीट तक तो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है. दिस इज अ स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन. लेकिन द मोमेंट चार्जशीट इज सबमिटेड एंड द पुलिस इज एक्टिंग नथिंग फर्दर, वो बैठ गई है चुपचाप, तो अब तो मैजिस्ट्रेट के ऊपर है ना उसे क्या करना है. तब वो जो कॉग्निजेंस लेगा और आगे की स्टेजेस करेगा, तो दैट इज द स्टेज ऑफ इंक्वायरी. सो सिंप्लीफाई करने के लिए, जनरल सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं जनरली कि इन्वेस्टिगेशन के बाद कॉग्निजेंस के बीच में आता है स्टेज ऑफ कॉग्निजेंस से लेके डिस्चार्ज की स्टेज तक आपकी आती है स्टेज ऑफ इंक्वायरी. एक बार चार्ज फ्रेम हो गया तो चार्ज फ्रेम होने के बाद की स्टेज है आपका ट्रायल. द ट्रायल स्टार्ट्स आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज. Till the point you have not framed a charge, and after the point of taking cognizance or at the point of taking cognizance आपकी स्टेज इंक्वायरी की कहलाती है. ये बहुत जनरल और सिंप्लीफिकेशन पर्पसेस के लिए कह रहा हूँ. लेट अस सी व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज आंसर्ड कि 319 के पर्पस के लिए क्या क्या इंक्वायरी हो सकती है. An inquiry can only be understood to be a pre-trial inquiry. Inquiry under section 200, 201, 202 CRPC and section 398 CRPC are species of inquiry contemplated by section 319 CRPC. सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉन्टेक्स्ट में कंप्लेंट के केस को भी आंसर किया था, और कंप्लेंट केस में बोला क्योंकि इफ यू रिमेंबर कंप्लेंट जब एक बार कंप्लेंट के प्रोसीजर से एक्ट करने लगता है तो 200 क्या कहता है, मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस, मतलब वो पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज है. 200 में व्हेन यू आर एक्टिंग and recording the examination of witnesses and reducing it to a substance, you have been deemed to have been taken cognizance. में मान लिया जाता है आपने संज्ञान ले लिया, तो पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज होती है. तो वही उसको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इंक्वायरीज अंडर 200, 201, 202 CRPC एंड 398 CRPC, जिसको मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप उसी के साथ पढ़ेंगे, डिस्चार्ज का 204 को 398 CRPC के साथ पढ़ेंगे. सो आई विल नॉट रिपीट इट अगेन एंड अगेन.
and under section 398 CRPC are the species of inquiry contemplated by 319. कि मतलब जो इंक्वायरी है बहुत वाइड है, ये कोई बहुत लिमिटेड इंक्वायरीज नहीं है, कोई स्पेशल इंक्वायरी नहीं है, ये एक जनरल सेंस में इंक्वायरी है जो CRPC में होती है. Materials coming before the court in the course of such inquiry can be used for corroboration of evidence recorded in the court after the trial commences for the exercise of power under 319 CRPC, and also add an accused whose name is shown in a column 2 of the charge sheet. In view of the above position, the word evidence has to be broadly understood and not literally understood, that is evidence brought during a trial. तो सुप्रीम कोर्ट ने इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स मैं आपको बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कंप्लेंट के केस में आंसर इसलिए किया है इसको क्योंकि कंप्लेंट को केस को लेके सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन था कि क्या जो उसके टाइम पे जो एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं क्या वो इंक्वायरी में आता है या नहीं आता है. द आंसर इज वो इंक्वायरी में आएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी एन इंक्वायरी, और उसकी स्टेज में भी 319 CRPC एक्सरसाइज की जा सकती है. दूसरा सवाल जो उसने आंसर किया कि 398 CRPC में भी जो इंक्वायरी है वो भी उस स्टेज के अंदर कंसिडर की जाएगी. तीसरी चीज उसने क्या आंसर की, जो एविडेंस है वो बहुत ही वाइड सेंस में लिया जाएगा. इन अदर वर्ड्स एविडेंस जो है वो चाहे इन्वेस्टिगेशन में कलेक्ट हो, चाहे वो इंक्वायरी में कलेक्ट हो, चाहे वो ट्रायल पे कलेक्ट हो, ऑल थ्री आर इंक्लूडेड, तो ब्रॉड सेंस में माना जाएगा. ऑल राइट, इट विल बी कंसिडर्ड इन अ वेरी ब्रॉड सेंस कि मान लीजिए जो चार्जशीट के साथ जो भी मटेरियल प्लेस किए गए हैं कोर्ट के साथ, क्योंकि ये केस तो कंप्लेंट के पर्पस से थोड़ा ज़्यादा आंसर किया गया है, तो बेसिकली मैं पुलिस रिपोर्ट के पर्पस से इसलिए आंसर कर रहा हूँ जिससे आपको वो भी समझ में आ जाए कि पुलिस रिपोर्ट की ऐसा मत समझ लीजिएगा कि पुलिस रिपोर्ट में ऐसा नहीं हो सकता. पुलिस रिपोर्ट पे भी अगर कोई केस इंस्टीट्यूटेड है तो इट विल बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली. उसका भी जो एविडेंस कोर्ट के सामने आया है, इट कैन ऑल्सो लुक एट इट, लेकिन कॉग्निजेंस लेने के बाद, क्योंकि कॉग्निजेंस लेने के बाद ही इंक्वायरी की स्टेज शुरू होगी. एंड द कोर्ट कैन लुक एट इट, उसको देखेगा, एंड अगर उसे लगता है कि और भी अक्यूज्ड इसमें शामिल हैं आफ्टर लुकिंग एट द एविडेंस, देन ही कैन रिजॉर्ट टू सेक्शन 319 आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस. ऑलराइट, सो दैट इज वो ट्रू स्कोप है इंक्वायरी का. और ट्रायल का तो समझना आसान है कि ट्रायल आफ्टर द स्टेज ऑफ चार्ज फ्रेमिंग, जैसे ही आपने चार्ज फ्रेम किया, यू कैन ऑब्वियसली रिजॉर्ट टू दिस प्रोविजन. फिर next question that comes is whether the word evidence used in 319 CRPC could only mean evidence tested by cross examination of the, or the court can exercise power under the said provision even on the basis of examination in chief. So if you remember, there are three types of examination under Indian Evidence Act. अगर आप लोग ने Indian Evidence Act पढ़ी है, तो अगर नहीं पढ़ी तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ. There are three types of examination. Examination in chief. Examination in chief वो पार्टी करती है कोर्ट में जिसने विटनेस को बुलाया है. ठीक है, जैसे मैं प्रोसिक्यूशन हूँ, आप मेरे विटनेस हो, मैंने अगर आपको कोर्ट में बुलाया मेरे केस को सपोर्ट करने के लिए, तो आई विल डू एन एग्जामिनेशन इन चीफ. और क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करता है, वो ऑपोजिट पार्टी करती है. ठीक है. फिर थर्ड टाइप ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है वो होता है री एग्जामिनेशन. इसका पर्पस बड़ा लिमिटेड होता है, इट इज ओनली यूज्ड टू एक्सप्लेन द मैटर रेफर टू इन क्रॉस एग्जामिनेशन. इतना सा पर्पस होता है. दिस इज प्राइमरली द मैटर ऑफ एविडेंस एक्ट. लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये तीन तरीके के प्राइमरली होते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल प्लेस किया गया था कि क्या 319 में आप जो भी एविडेंस कंसिडर करेंगे वो वही एविडेंस होना चाहिए जो क्रॉस एग्जामिनेशन से टेस्टेड है, या एग्जामिनेशन इन चीफ से भी काम चल सकता है, या ड्यूरिंग ट्रायल के एविडेंस की बात की जा रही है. तो क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्पस क्या होता है? प्राइमरली टू टेस्ट द वेरासिटी ऑफ द विटनेसेस हु इज सेइंग, टू टेस्ट हिज क्रेडिबिलिटी. ये जनरली पर्पस होते हैं. वैसे तो बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको जनरली बता देता हूँ. टू टेस्ट हिज वेरासिटी एंड टू टेस्ट हिज क्रेडिबिलिटी. ये दो चीजें होती हैं जिसको जानने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है ऑपोजिट पार्टी का. और मैंने ध्यान रखिए ऑपोजिट पार्टी शब्द का यूज किया है, ना कि डिफेंस का.
क्योंकि अगर मैं प्रोसिक्यूशन हूँ और मैंने अपने विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ करवाया तो ऑपोजिट पार्टी तब डिफेंस कहलाएगी, तो वो क्रॉस एग्जामिन करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं डिफेंस हूँ और एग्जामिनेशन इन चीफ मैंने अपने विटनेस का कराया, डिफेंस विटनेस का, तो क्रॉस एग्जामिन कौन करेगा? प्रोसिक्यूशन करेगा। ऑलराइट, सो प्रॉपर टर्म है ऑपोजिट पार्टी शैल कंडक्ट द क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है। और एग्जामिनेशन इन चीफ कौन करेगा? द पार्टी कॉलिंग विटनेस। So the Supreme Court answered this question कि examination in chief even untested by the cross examination is sufficient for the word evidence under 319 of the CRPC. It itself is considered to be an evidence, ठीक है। अगर कोई भी मान लीजिए अगर क्रॉस एग्जामिन नहीं करे, काउंसिल ऑपोजिट पार्टी अगर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करे, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एग्जामिनेशन चीफ का कोई वही नहीं रहा, एविडेंस ही नहीं रहा, वो एविडेंस तब भी कहलाता है। प्रैक्टिकली कोर्ट में क्या होता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन की वजह से वेरासिटी और क्रेडिबिलिटी बहुत टेस्ट हो जाती है, और जनरली कोर्ट चाहता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस का हो। लेकिन अगर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है, लेट अस सपोज पार्टी कर ही नहीं सकती है क्रॉस एग्जामिनेशन उसका, या कोई मटेरियल ही नहीं है, कोई ग्राउंड्स ही नहीं है क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए ऑपोजिट पार्टी के पास, तो ऐसे में कोर्ट ये भी मान सकता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि एग्जामिनेशन इन चीफ इज प्राइमरली करेक्ट। तो कोर्ट ने बोला कि इवन इन अ ट्रायल एग्जामिनेशन इन चीफ विच इज अनटेस्टेड बाय क्रॉस एग्जामिनेशन इज ऑल्सो एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ 319। तो 319 एग्जामिनेशन इन चीफ के बेसिस पे भी आप कर सकते हैं। इट डजंट रिक्वायर टू बी टेस्टेड बाय क्रॉस एग्जामिनेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट पे आते हैं। What is the nature of satisfaction required to invoke the power under 319 to arraign an accused? Whether the power under 319 subsection 1 of the CRPC can be exercised only if the court is satisfied that the accused will in all likelihood be convicted. तो क्या जो डिग्री ऑफ द सेटिस्फैक्शन है वो वैसा होना चाहिए कि हर सिचुएशन में अक्यूज्ड कन्विक्ट ही होगा? डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है? जज को किस लेवल पे उस एविडेंस से सेटिस्फाई होना चाहिए इन ऑर्डर टू समन अ पर्सन अंडर 319? तो सवाल ये था, और साथ में इसके ये भी जुड़ा था कि क्या सेटिस्फैक्शन कन्विक्शन की स्टेज तक का होना चाहिए कि अगर ये अक्यूज ऐसा एविडेंस ऑफ द मटेरियल प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट इज ऑफ सच नेचर that the court considers that if I consider such evidence, the accused will be convicted in all probability. तो क्या इस लेवल का होना चाहिए या वो प्राइमा फेसाई लेवल का मान लिया जाएगा? Then the answer is that the satisfaction should be a bit more than that of a prima facie case, but it should be short of conviction. Conviction के लेवल का नहीं चाहिए, प्राइमा फेसाई केस से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, दो अंडर सेक्शन 319(4)(b) CRPC the accused subsequently pleaded is to be treated as if he had been an accused when the court initially took cognizance of the offense. The degree of satisfaction that will be required for the purpose of 319 would be the same as framing for a charge फ्रेमिंग का है। Why is it of चार्ज फ्रेमिंग? चार्ज फ्रेमिंग का क्या आपका होता है? प्राइमा फेसाई केस। बट इसके साथ अभी एक और केस आएगा जो बोलेगा प्राइमा फेसाई केस एंड इट शुड बी अ बिट मोर देन अ प्राइमा फेसाई केस, शॉर्ट ऑफ कन्विक्शन की स्टेज का नहीं चाहिए। प्राइमा फेसाई केस का चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा, लेट अस सपोज 10% ज्यादा, थोड़ा ऐसा होना चाहिए। The difference in degree of satisfaction of summoning the original accused and a subsequent accused is on the account of fact that the trial may have already commenced against the original accused, and in course of such trial the material are disclosed against the newly summoned accused. Fresh summoning of an accused will result in a delay of trial. Therefore, degree of satisfaction for summoning the accused हैज टू बी डिफरेंट। देखिए, दो तरीके से इसको समझिए कि कोर्ट ने चार्ज फ्रेमिंग
क्यों बोला कि सेटिस्फैक्शन चार्ज फ्रेमिंग का है? क्योंकि व्यक्ति सीधे ट्रायल झेलेगा, और आपको पता है कि जो ओरिजिनल अक्यूज थे, जो पर्सन जो नया समन किया गया, उनको अगर छोड़ दें तो ओरिजिनल अक्यूज जो थे उनके पास तो कई ऑप्शन अवेलेबल थे, दे हैड मल्टीट्यूड्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। उन्होंने डिस्चार्ज एप्लीकेशन भी की, उन्होंने कॉग्निजेंस लेटर सपोज उसको भी कॉश कराने की कोशिश की, बट ये ऑप्शन तो फ्रेशली समन्ड पर्सन के पास तो नहीं था ना, जिसको 319 में समन किया गया। तो उसको क्योंकि डायरेक्टली ट्रायल पे लाया जाएगा, दैट इज वाई द सेटिस्फैक्शन दैट इज रिक्वायर्ड विल बी ऑफ द स्टेज ऑफ चार्ज फ्रेमिंग, क्योंकि ट्रायल कब शुरू होता है? जब आपका चार्ज फ्रेम हो जाता है। ऑलराइट, दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्राइमरली आंसर किया कि द सेटिस्फैक्शन दैट इज रिक्वायर्ड shall be of charge framing, and you know कि what is the level of satisfaction that is required for framing of a charge. So that is why I dealt charge beforehand. फिर next question जो सुप्रीम कोर्ट ने आंसर किया, does the power under 319 CRPC extends to persons not named in an FIR or named in an FIR but not charge sheeted or who has been discharged? A person not named, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका ये आंसर किया कि a person not named in an FIR or a person though named in an FIR but has not been charge sheeted or a person who has been discharged can be summoned under 319 CRPC, provided that from the evidence it appears that such person can be tried along with the accused already facing trial. However, insofar as an accused who has been discharged is concerned, the requirements of section 300 and 398 CRPC has to be complied before he can be summoned afresh. So what does section 398 CRPC says? If you remember, I have already told you to read section 398 when I was talking about the complaint which has been dismissed, or where a issue of process has been dismissed under section 204 subsection 4, if you remember. तो उसका रीज़न था जिससे आप 398 को इक्वेट करना जान जाएं कि वो इन स्टेजेस पे काम करती है। वो चार्ज डिस्चार्ज के साथ भी काम करती है। लेट अस सपोज अ पर्सन हु हैज़ बीन डिस्चार्ज, इफ अ पर्सन वो हैज़ बीन डिस्चार्ज, तो ऐसे केस में जो आपका हाई कोर्ट है या कोर्ट ऑफ सेशन है, वो एक इंक्वायरी डायरेक्ट कर सकता है, चाहे वो सीजेएम से या किसी और मैजिस्ट्रेट जो उसका सबऑर्डिनेट है उससे वो इंक्वायरी डायरेक्ट कर दे कि कंडक्ट एन इंक्वायरी अगेंस्ट अ पर्सन हु हैज़ बीन डिस्चार्ज और अगेंस्ट whom a complaint has been dismissed under section 203 और section 204 सबसेक्शन 4 ऑफ द CRPC। पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है प्रोवाइजो का कि नो कोर्ट शैल मेक एनी डायरेक्शन अंडर सेक्शन 398 who has been discharged unless he has an opportunity to show cause why such direction should not be made. देखिए, डिस्चार्ज हो गया है पर्सन, तो उसको लेजिस्लेचर एक अपॉर्चुनिटी देता है कि ये इवन दो सुपीरियर कोर्ट्स के पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि दे कैन ऑर्डर एन इंक्वायरी अंडर 398, बट द लेजिस्लेचर हैज एक्चुअली डिमांडेड दैट द कोर्ट्स नीड टू हियर such a person who has been discharged if he wants to show cause why such order for inquiry should not be made. सिंपल सी बात है कि अगर कोर्ट ने डिस्चार्ज किया है तो इसका मतलब ये है ना कि प्राइमा फेसाई केस भी पहले नहीं था, और तो फिर अक्यूज्ड को जबरदस्ती हैरास क्यों किया जाए। तो एक बार जब वो प्राइमा फेसाई केस नहीं उसके खिलाफ सेटिस्फाई हो पाया, तो इन दैट सिचुएशन legislature does not want that his fundamental right to liberty should be trifled with by the abuse of the process of the court, कि let us suppose the prosecution या complainant concerned फिर से रिविजनल कोर्ट पहुंच गए और बोले हाई कोर्ट या सेशन जज से कि इंक्वायरी कंडक्ट कराइए इसके खिलाफ, he has been discharged, ये कैसे हो गया। You cannot क्या कहते हैं कि the sessions court and the high court cannot
issue such a direction against a person who has been discharged if he wants to show cause. पहले उसको सुनना होगा. The superior courts, sessions judge and the high court shall give an opportunity to the person who has been discharged before issuing such order under section 398. इसका पर्पस सिर्फ इतना सा है कि अगर वो पहले डिस्चार्ज हुआ है तो इसका मतलब प्राइमा फेसाई केस भी नहीं था. लेट अस सपोज हमने उसको पाया कि वो 227 ऑफ द सीआरपीसी या 239 ऑफ द सीआरपीसी या 245 ऑफ द सीआरपीसी में डिस्चार्ज हुआ है. लेट अस सपोज इन आइदर ऑफ द सेक्शन डिस्चार्ज हुआ है. तो ऐसे केस में ये अज्यूम किया जा सकता है कि प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू प्रूव द केस इवन ऑन द प्राइमा फेसाई लेवल. और चूंकि वो प्राइमा फेसाई लेवल पे भी प्रूव करने में फेल हो गया था उस अक्यूज्ड के खिलाफ, अर्लियर अक्यूज्ड के खिलाफ, तो ऐसे केस में पर्सन्स को बार बार हैरेस नहीं किया जा सकता बाय द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट. तभी 398 में एक अपॉर्चुनिटी फॉर हियरिंग प्रोवाइड की गई है उस पर्सन को वो हैज बीन डिस्चार्ज. तो 398 किन किन सिचुएशंस पे लगता है? 203 जहाँ पे कंप्लेंट डिसमिस हुई है, 204 का 4 जहाँ पे कंप्लेंट डिसमिस हुई है बाय नॉन पेमेंट ऑफ द प्रोसेस फी, और डिस्चार्ज आपका कहाँ कहाँ होता है? 227 में होता है, 245 में होता है और 239 में होता है. 245 और 239 वारंट ट्रायल बाय द मैजिस्ट्रेट कंसर्न्ड होते हैं जिसके अंदर वो डिस्चार्ज होता है. ओके, सो हमेशा ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा. और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है that I want to tell you that there is a great difference with regard to a person who has been discharged and the person who has been acquitted and the person who was never subjected to an investigation or if subjected to such an investigation but has not been charge sheeted. इन तीनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. तो देखिए, अगर पर्सन एक्विट हो जाता है, जो बहुत सिंपल भाषा में बता देता हूँ, पर्सन हैज बीन एक्विटेड, तो ट्रायल के कंक्लूजन पे एक्विट होता है. और एक बार वो एक्विट हो गया तो सेक्शन 300 अप्लाई कर जाता है, जो ऑट्रोफाइज एक्विट की डॉक्ट्रिन अप्लाई करेगा, जो कहेगा पर्सन ऑन द सेम फैक्ट कैन नॉट बी ट्राइड. अब 300 के अपने भी नुआंसेज हैं, वो मैं अभी डील करूंगा जब ये सब जितने भी ट्रायल के प्रोविजंस हैं ये जब तक ना खत्म हो जाए. जब एक बार ट्रायल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा देन आई विल गेट इन डिटेल अंडर सेक्शन 300. लेकिन अभी प्रिलिमिनरी लेवल पे ये समझ लीजिए कि ऑट्रोफाइज एक्विट और ऑट्रोफाइज कन्विक्ट की डॉक्ट्रिन सेम फैक्ट्स को ट्राई होने से रोकते हैं जो ऑलरेडी ट्राइड हैं. अगर कन्विक्ट हो गया तो सेम फैक्ट पे दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता इन ऑर्डर टू कन्विक्ट इन अगेन, और अगर एक्विट हो गया तो सेम फैक्ट्स पे दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता इन ऑर्डर टू कन्विक्ट और एक्विट हिम. ठीक है, सेम फैक्ट्स पे ट्रायल बार करता है सेक्शन 300. और फिर उसकी अपनी नुआंसेस है कि कोर्ट भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए या अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट ने ऑर्डर सेट असाइड नहीं करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट विल गो इनटू दैट लेटर. प्राइमरली अभी इस डिफरेंस पे ध्यान दीजिए. द पर्सन हु हैज बीन डिस्चार्ज्ड stands on a different footing than a person who was never subjected to an investigation or if subjected but was not charge sheeted. See, such a person who has stood the stage of inquiry before the court and upon the judicial examination of the material collected during the investigation, the court has come to a conclusion that there is not even a prima facie case to proceed against such person. Then generally such person stands on a bit higher footing than the person who is not subjected to investigation or if subjected to but was not charge sheeted. तो जिसको चार्ज शीट भी नहीं किया गया या जिसको इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे नहीं लाया गया, इन्वेस्टिगेशन भी उसका नाम नहीं है, तो वो तो उसके लिए तो राइट नहीं है 398 ऑफ द सीआरपीसी में. लेकिन जिस पर्सन ने इंक्वायरी झेलने के बाद उसने डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाई और कोर्ट ने सारा मटेरियल पा के और सारी जनरल गाइडलाइंस फॉर द डिस्चार्ज देख के ये पाया कि प्राइमा फेसाई केस भी नहीं बन रहा, ही स्टैंड्स ऑन अ हायर फुटिंग देन हिम हु हैज नेवर बीन सब्जेक्ट टू एन इन्वेस्टिगेशन और हु हैज नॉट बीन चार्ज शीटेड. ऑलराइट, सो जो पर्सन डिस्चार्ज हो चुका है तो उसको समन करने के लिए देयर शुड बी वेरी कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस टू एक्सरसाइज सच पावर. The court should keep in mind that the witness, when giving evidence against a person so discharged, is not doing so merely to seek revenge
or is naming him at the behest of someone or for some extraneous considerations। ये तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कोर्ट को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रिवेंज सीक करने के लिए या किसी और के कहने पे विटनेस उसका नाम ले रहा है या किसी दूसरे कारणों की वजह से उसका नाम ले रहा है। ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। द कोर्ट हैज़ टू सर्कमस्पेक्ट इन ट्रीटिंग सच एविडेंस एंड ट्राई टू सेपरेट grain from chaff. If after such careful examination of the evidence, the court is of the opinion that there does exist evidence to proceed against the person so discharged, it may take steps, but only in accordance with section 398 CRPC without resorting to provision 319 CRPC directly। क्योंकि वो डिस्चार्ज हो चुका है तो पहले उनको किससे कंप्लाई करना होगा, 398, और 398 में एक अपॉर्चुनिटी फॉर हियरिंग भी देनी पड़ेगी और उसके बाद इट कैन कंप्लाई विद 319 डायरेक्टली। ऐसे पर्सन को जो डिस्चार्ज हो चुका है उसको आप सीधे नहीं समन कर सकते 319 में, क्योंकि पहले तो आप जब प्राइमा फेसी केस ही नहीं सेटिस्फाई कर पाए तो इसका मतलब है जो उसके खिलाफ जितने भी प्रिजम्पशंस थे वो राइज कर गए। फिर बाद में आपके पास कोई ऐसा एविडेंस आ जाता है विच यू थिंक कि it is of a degree of probability higher than a prima facie evidence, even then you have to comply with section 398 CRPC, or after that when the sessions court or the high court orders an inquiry and has given an opportunity to the person who has been discharged to show cause why such direction should not be made, and after that inquiry is done, then you can resort to section 319 CRPC। देखिए सेक्शन 319 सीआरपीसी जो है डिस्क्रेशनरी पावर है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर है, तो स्पेरिंगली एक्सरसाइज करना है, मैकेनिकली नहीं एक्सरसाइज कर सकते। वेयर द सर्कमस्टेंस इट कैन नॉट बी मैकेनिकली एक्सरसाइज्ड, वेयर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस डू नॉट वारंट द एक्सरसाइज ऑफ सच पावर, you ought not to exercise such power। See, any judicial discretion is not capricious, it's not arbitrary, it's not whimsical, it has to be guided by a definite criteria, it has to be based on reasons and relevant reasons at that। So be very particular कि 319 CRPC, be very sure that when you are exercising a power under 319 you are actually arraigning the accused to stand trial directly। So you have to keep in mind his liberties, you have to keep in mind the presumptions of law, you have to keep in mind the fundamental rights, and after that you can come to the conclusion कि whether should I or should I not। मैकेनिकली नहीं एक्सरसाइज करिएगा। मैकेनिकली एक्सरसाइज का मतलब कि merely because you heard his name, कोई एविडेंस आपको स्ट्रॉन्ग लगा नहीं, प्राइमा फेसी लेवल पे ही नहीं लगा, पर किसी ने नाम ले लिया आपने सीधे बुला लिया, डोंट डू दैट। देयर शुड बी सम प्राइमा फेसी एविडेंस and it should not, and power under 319 should not be exercised casually। all right, so in money next in line of judgments जो हैं वो हैं मनी पुष्पक जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। 17 अक्टूबर 2019 को डिसाइड हुआ था ये। इसके अंदर हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब को भी रेफर किया गया था, हालांकि ये 2 जज बेंच का जजमेंट है, बट इसने प्राइमरली हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के ही पॉइंट्स लिए हैं, तो वही मैं आपको रिटरेट कर देता हूँ एक बार। मनी पुष्पक जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड में इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दो ओनली अ प्राइमा फेसी केस इज टू बी एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम द एविडेंस लेड बिफोर द कोर्ट एंड इट इज नॉट नेसेसरी टू टेस्ट सच एविडेंस ऑन द एनुअल और द क्रॉस एग्जामिनेशन, it requires a bit stronger evidence than mere probability of his complicity। mere probability of his complicity से थोड़ा stronger होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि the test that has to be applied is one which is more than a prima facie case as exercised at the time of framing charge, but short of satisfaction to an extent of evidence if goes unrebutted would lead to conviction। मतलब कह रहा है कि prima facie case से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा, बट कन्विक्शन का जो सेटिस्फैक्शन है, जिस एविडेंस पे आप कन्विक्ट कर सकते हैं किसी को, उससे काफ़ी कम, उतने लेवल का नहीं चाहिए आपको कि आप ये सोच लें कि इस एविडेंस पे तो कन्विक्ट कर सकते हैं, उतना नहीं कंसिडर करना, सिर्फ ट्रायल की स्टेज का कंसिडर करना है। ऑल राइट, सीआरपीसी कौन से शब्दों का यूज करती है अंडर 319? वो इन शब्दों का यूज करती है, इफ अपीयर्स फ्रॉम द एविडेंस दैट एनी पर्सन नॉट बीइंग द अक्यूज्ड हैज कमिटेड एन ऑफेंस
और जो वर्ड्स जो उसके बाद मैं आपको रीड कर रहा हूँ, जिसके कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है 319 में, फॉर विच पर्सन्स कुड बी ट्राइड टुगेदर विद द अक्यूज्ड। वर्ड्स ये नहीं है फॉर विच सच पर्सन कुड बी कन्विक्टेड टुगेदर, ट्राइड टुगेदर की बात है। ट्रायल के लिए आपको कौन से लेवल का सेटिस्फैक्शन चाहिए? आपको पता है, in order to start a trial you have to frame a charge, तो satisfaction for framing a charge is what, on a very prima facie level। लेकिन 319 पे लेके एक राइडर ये भी कोर्ट ने लगा दिया गया, क्योंकि 319 में जो भी पर्सन समन किया गया उसके पास अपॉर्चुनिटी टू डिस्चार्ज नहीं होती है। तो कोर्ट ने बोला कि इन दिस सिचुएशन अगर आपको 319 एक्सरसाइज करना है किसी दूसरे पर्सन को लेके, सो यू हैव टू मेक श्योर कि while you are exercising that power it has to be a bit more than prima facie case but shorter than what is necessary for conviction। all right, always keep in this difference in mind। so this was primarily of 319। एक और केस इसी पॉइंट पे बोल देता हूँ जस्ट टू शो यू दैट द लॉ इज बीइंग कंसिस्टेंटली फॉलोड ऑन दिस पॉइंट। ये पेरियासामी वर्सेस एस नल्लासामी, ये 2019 SCC ऑनलाइन में रिपोर्ट हुआ था, पेज नंबर 379 में। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि इफ यू वांट टू समन एन एडिशनल पर्सन अंडर 319 he can be summoned only if there is more than prima facie case as is required at the time of framing the charge but which is less than the satisfaction required at the time of conclusion of the trial convicting the accused। इसीलिए मैंने 319 की शुरुआत में ये बातें बोली थी कि it should be a bit more than prima facie case but shorter than conviction। इसीलिए that was the only reason, क्योंकि मैं इन सारे जजमेंट्स को ध्यान में रख के बोला था। ये जो ये पॉइंट्स हैं ये हरदीप सिंह से ही निकलते हैं, ये सारे हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में हैं। तो हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज द प्राइमरी जजमेंट दैट यू हैव टू कोट। विदाउट इट काम नहीं चलेगा। यू हैव टू कोट हरदीप सिंह फर्स्ट, देन यू कम ऑन मनी पुष्पक जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, देन यू कम ऑन पेरीसामी वर्सेस एस नालासामी। ये सिर्फ स्टडी नोट्स की बात कर रहा हूँ, बट जब आप आंसर लिखेंगे तो बेयर एक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ, मैक्सिम्स अगर आती हैं तो ऑब्जेक्ट के ही साथ लिख दीजिए। जैसे इस केस में है जुडिस डैमनेटर कम नॉनसेंस एब्सोल्वेटर। अगर लैटिन भाषा का स्टेटमेंट नहीं याद है तो यू कैन ऑलवेज कोट इंग्लिश में ही सीधे लिख देते, द जज इज कंडेम्ड व्हेन अ गिल्टी इज एक्विटेड, देन यू कम ऑन दीज पॉइंट्स और अपना एक कंक्लूजन लिख दीजिए। ऑलराइट, और जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि 319 में कब समन कराया जा सकता है और कब समन नहीं कराया जा सकता है। अगर इफ यू बिलीव दैट अ जज इज acting mechanically a person, you can always move the higher forum to interfere with the discretion of the trial judge who have summoned a person under 319 CRPC। all right, so the practicing lawyer and they should know how to use this section। they have to primarily move to a superior court or tell the court itself that you are acting mechanically, the evidence that you have not satisfied the criteria as is laid down in Hardeep Singh or in Mani Pushpak Joshi, that the evidence required to summon such person has to be of a higher degree than that of a prima facie level, and but it should be short of conviction, but the judge is acting on merely on a very capricious or whimsical exercise, then you can as a defense lawyer you can cause some problems for such a judge and tell him that you cannot act mechanically in this case. If the judge doesn't listen to you, you can always move the higher forum, preferably the high court in this case, where he will interfere in his revisional jurisdiction with the exercise of discretion under 319 of the CRPC। all right, तो एक ये हो गया, ये 319 का प्राइमरी पॉइंट्स थे। नथिंग एल्स इज लेफ्ट इन 319 आई सपोज। और बाकी इलस्ट्रेशन का बात होता है। एक इलस्ट्रेशन आपको दे देता हूँ जिसे आप बहुत अच्छे से समझ लें। दो इलस्ट्रेशन एक्चुअली दूंगा, एक पुलिस रिपोर्ट का दूंगा, एक कंप्लेंट का दूंगा। मान लीजिए एक वुमेन के घर पे 4 लोग घुस जाते हैं डकैती के लिए। 3 को जानती है, वो चौथे को नहीं जानती। शी नोज 3 of them but he doesn't know the 4th person कि वो कौन था। तो वो एक कंप्लेंट केस दायर करती है सेक्शन 200 ऑफ द CRPC में। केस कमिट होता है इवेंचुअली कोर्ट ऑफ सेशन को, डकैती है। सो डकैती 5 लोग होने चाहिए। सो व्हाट हैपेंस इज कि 4 को जानती है पर 1 को नहीं जानती। शी डजंट नो वन ऑफ देम।
she knows 4 people, but she doesn't know one of them. She doesn't know one of the accused. कि चार लोगों को वो अच्छे से जानती है कि 4 लोग कौन है जिन्होंने उसके घर पे डकैती की, पर वो 5वां बंदा जो था, he was a very different one. All right. So उस केस में डकैती के लिए रिमेम्बर 5 या 5 से ज़्यादा होने चाहिए. रॉबरी के लिए 5 से कम हो सकते हैं. डकैती इज ओनली रॉबरी committed by 5 or more persons. So the woman files a complaint case. The complaint case is then committed before the court of session. Court of session के पास जाता है. अब कोर्ट ऑफ सेशन के पास जब कोर्ट जाता है, केस जाता है, तो उसमें वो कंप्लेंट में 4 ही अक्यूज्ड का नाम है, 5वें का नहीं है. ऑल राइट. सो सेशन जज ड्यूरिंग द ट्रायल हियरिंग, जब प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस का एग्जामिन होता है, तो जो विक्टिम होती है वो बताती है कि मेरे घर पे 5 लोग घुसे थे. इन चारों को तो मैं जानती हूँ, ABCD मान लीजिए नाम है. एक अक्यूज का नाम A है, दूसरे का नाम B है, तीसरे का नाम C है, चौथे का नाम D है. वो कहती है एक 5वां भी था, लेकिन 5वें को मैं नहीं जानती थी बाय फेस, सो आई डोंट नो कि वो कौन था, और ना मैं उसका नाम जानती थी और ना इन लोगों ने बताया वो कौन था. तो सेशन जज ध्यान देता है कि हाँ, देयर वाज सम 5th पर्सन आल्सो इन्वॉल्व, पर वो कौन है नहीं पता था. डिफेंस के जब विटनेसेस का एग्जामिनेशन होता है तो ABCD बुलाए जाते हैं. तो ABCD बताते हैं कि चोरी तो हमने की ही नहीं थी, चोरी तो उस 5th आदमी ने की थी. 5th आदमी का नाम लेट अस सपोज है रमेश है. लेट अस सपोज हिज नेम इज रमेश, कि 5th पर्सन इज नेम्ड रमेश. तो कहता है कि चोरी हम लोग ने नहीं की थी, डकैती हम लोग ने नहीं डाली थी. हम लोग को तो ये बताया गया था कि उस घर पे पार्टी है और वहाँ पे रमेश हम लोग को ले गया था, पर रमेश ने फिर वहाँ पे आके बताया कि हमें डकैती करनी है. तो रमेश की बात हमने मानी थी, तो उसकी वजह से हमने किया था. हमारा कोई प्लान नहीं था वुमेन के घर पे घुस के डकैती करने का. तो कोर्ट को 2 चीजें पता चलती है कि देयर वाज फर्स्ट ऑफ ऑल अ 5th पर्सन जो इन्वॉल्व है, जो कहीं मिला नहीं, और दूसरी चीज पता चलती है कि उसका नाम रमेश है. फिर कोर्ट पूछती है कि अच्छा ये रमेश कहाँ रहता है, और वो बताते हैं कि रमेश लेट अस सपोज दिल्ली के जहांगीरपुरी एरिया में रहता है. कोर्ट फिर सेक्शन 319 में इस 5th पर्सन को समन कर सकती है, क्योंकि जो एविडेंस जो उसके सामने आया है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट कैन समन सच पर्सन. बट दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. अब पुलिस रिपोर्ट पे जो केस इंस्टीट्यूट है उसका एग्जाम्पल लूंगा कि एक FIR होती है और इट इन्वॉल्व्स अ वेरी वेल्दी फैमिली वो इज पॉलिटिकली कनेक्टेड. बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी हैं एंड दे आर वेरी रिच. दे एक्चुअली कॉज अ मर्डर ऑफ सम पुअर पेजेंट. तो उस पुअर पेजेंट की जो माँ है उसने FIR लॉन्च की. तो जब FIR लॉन्च की तो पहले तो FIR नहीं लॉन्च कर रहे थे पुलिस वाले, कह रहे थे सेटल कर लो, जीत नहीं पाओगे. बट एट द एंड ऑफ इट दे सकम टू द प्रेशर. उसने बोला ललिता कुमारी जजमेंट को लेके कि आपको मैंडेटरी है FIR रजिस्टर करना, और अगर आप नहीं रजिस्टर करोगे तो मैं 156(3) का ऑर्डर ले आऊंगी. तो इवेंचुअली पुलिस वाले रजिस्टर कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पर बॉस्ड इन्वेस्टिगेशन होती है. उसमें जो प्राइमरी अक्यूज था जिसको उसकी माँ ने देखा था उसको नहीं शामिल किया. एकदम उन लोगों को शामिल कर दिया जिनका माइनर कनेक्शन था उस ऑफेंस से. जो प्राइम अक्यूज था जिसने एक्चुअली में मर्डर किया, द प्राइम पर्सन था जिसने एक्चुअली में मर्डर किया, उसको नहीं इन्वॉल्व किया. क्यों नहीं इन्वॉल्व किया? क्योंकि जो ऐसे पर्सन का फादर था जिसने मर्डर किया वो बड़ा पॉलिटिकली कनेक्टेड था, बहुत रिच था और इन्फ्लुएंशियल था. उसने पुलिस को बोला कि पैसा ले लो बट डू नॉट इंक्लूड द नेम ऑफ सच पर्सन. मेरे मान लीजिए उसका बेटा था, कहता मेरे बेटे का नाम नहीं आना चाहिए जिसने मर्डर किया उस प्रेसिडेंट का. तो पुलिस वाले उसका नाम चार्जशीट में दायर ही नहीं करते. खैर 161 के बयान रिकॉर्ड होते हैं. कई दूसरे लोग जो छोटे मोटे लोग होते हैं उनको पुलिस अरेस्ट करती है, और जो छोटे मोटे लोग जिनको अरेस्ट करती है उनको भी पॉलिटिशियन पहुंच के कह देता है कि ऐसा करना, कन्फेशन कर लेना कोर्ट में जाके,
और कन्फेशन कर लोगे तो मैं तुम्हारी फैमिली को सेटल कर दूंगा, बस एक बात का ध्यान रखना, इसका नाम नहीं आना चाहिए, मेरे बेटे का जो प्राइम पर्सन है जिसने ऑफेंस किया है, इसका नाम नहीं आना चाहिए। वैसा करता है। सो इन दैट सिचुएशन वो सारे मान जाते हैं कि ठीक है हम नहीं करेंगे, नहीं मेंशन करेंगे उसका नाम। फिर पॉलिटिशियन उनकी फैमिली को सेटल भी कर देता है। अब ये लोग जाते हैं कोर्ट के सामने, बोलते हैं कि हम ही ने किया है, हम ही ने ऑफेंस किया है और इसमें और किसी का हाथ नहीं था। जज कहता है ठीक है। वो फिर भी ट्रायल कंडक्ट करता है आगे चल के। जो फिर प्रोसिक्यूशन में जो पहला विटनेस आती हैं वो उस पेजेंट की माँ आती हैं। वो बताती हैं कि वो पॉलिटिशियन का जो सन है ये उसने ऑफेंस किया है, पर पुलिस ने उसका नाम ना चार्जशीट में भेजा, ना पुलिस ने उसका नाम एफआईआर में रिकॉर्ड किया जो मैंने दी थी। मैं बोल रही थी उसका नाम रिकॉर्ड करो, पर उन्होंने नहीं रिकॉर्ड किया। तो ऐसे केस में ऑन दिस एविडेंस द जज कैन, ऑफ ऑल्सो कीपिंग इन माइंड द अदर सर्कमस्टेंसेस जो केस में अपीयर करें कि क्या अक्यूज्ड की प्रॉक्सिमिटी थी ऐसी, क्या वो स्पॉट पे प्रेजेंट था, एसेट्रा एसेट्रा। थोड़ा सा इस पे डील करने के बाद ही कैन समन सच पर्सन अंडर 319। या तो जज दूसरा रिकॉर्स भी अडॉप्ट कर सकता है इस केस में। वो पहले उसकी माँ को सुनता है, जो पेजेंट की माँ, जो डिसीज्ड की मदर है और जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 है। तो प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 जब बोलती है कि ए भी इसमें शामिल था और जो ए है उसका नाम कहीं नहीं आने दिया बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर, ना पुलिस ने इन्वॉल्व किया और ये लोग भी उसका नाम नहीं ले रहे। तो कोर्ट कुछ सवाल पूछता है प्रोसिक्यूशन के विटनेस से ए को लेकर कि अच्छा आप ए को कैसे जानती हैं, आपको कैसे पता कि वो वहाँ था, क्योंकि 165 इंडियन एविडेंस एक्ट में वो पूछ सकता है। तो वो जवाब देती हैं, सबका एकदम ठीक जवाब देती हैं, जिससे कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ शी इज़ नॉट, वो जज के ओपिनियन में शी बिलीव्स दैट द मदर इज़ नॉट लाइंग। उसके बाद वो डिफेंस के उन चारों को बुलाता है। वो बोलता है कि अच्छा ऑफेंस आपने किया था। वो कहते हैं सारे विटनेसेस जो लोग इकबाल जुर्म करना चाहते थे, कन्फेशन करना चाहते थे, वो कहते हैं कि हाँ हम ही ने किया है, ए इसमें शामिल नहीं था। तो पूछते हैं कि ए को तुम लोग कैसे जानते हो? तो फिर उसमें से कोई बोल देता है कि वो तो हमारा दोस्त था, बहुत टाइम से रहता था। तो फिर जज और भी सवाल पूछने लगता है कि अच्छा ये बताइए कि जिस रात इन लोग का मर्डर हुआ, पेजेंट का मर्डर हुआ जिस रात को, तो उस दिन ए किधर था? तो ये लोग बोलते हैं कि ए तो स्पॉट पे नहीं था। तो जज पूछता है कि ए फिर था कहाँ पे? उनमें से एक कोई बता देता है कि ए वहाँ पे नहीं था, ए वहाँ से 5 किलोमीटर दूर पे था। अब इस पे जज को शक हो जाता है। वो कहता है कि अगर इन लोग को ना पता होता कि ये कहाँ पे था तो ये लोग सीधे बोल देते कि हम लोग उस दिन उससे मिले नहीं थे, सो वी डोंट नो हिज वेयर अबाउट्स। बट रादर देन टेलिंग द जज, द कोर्ट दिस कि they don't know his whereabouts, they are actually making an excuse for A कि वो 1 किलोमीटर दूर था, वो 5 किलोमीटर दूर था, वो वहाँ पे नहीं था, ये हम लोग ने किया था, या वो 2 घंटे पहले निकल गया था। सो जज ये सोच सकता है कि दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू शील्ड ए बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। और देखिए एक बार जज के दिमाग में आ गया कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, तो वो ये भी प्रिज्यूम कर सकता है कि येस दैट पर्सन मे हैव बीन इन्वॉल्व, पर उसे प्राइमा फेसी केस तब भी देखना पड़ेगा। तो एविडेंसेस ये सारे कंसिडर करके क्या लग रहा है जज को लग रहा है प्राइमा फेसी केस तो एस्टैब्लिश हो रहा है, क्योंकि एक प्राइम विटनेस यहाँ पे ये कह रहा है कि येस दे हैव सीन इट। वो अकेले उसकी माँ के एविडेंस पे भी एक्ट कर सकता था, क्योंकि शी वॉज सेइंग अगेन एंड अगेन कि ए इसमें शामिल था, ए इसमें शामिल था, ए भी शामिल था, वो प्राइम अक्यूज था, वो उसी ने मेन मर्डर किया है। तो अगर पुलिस ने ना चार्जशीट भेजी ना एफआईआर में उसका नाम रिकॉर्ड किया, तो ऐसे केस में तो अकेले उसी को समन कर सकता था। लेकिन मैंने आपको ये भी एग्जांपल दे दिया कि एग्जामिनेशन इन चीफ को छोड़ के वो हो सकता है डिफेंस का के भी एग्जामिनेशन का वेट करे और फिर उनको जब एग्जामिन करे 165 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में कुछ सवाल पूछे जब उनसे,
तो वो जो भी जवाब दें उससे भी अपना प्राइमा फेसाई सेटिस्फैक्शन और अच्छे से लेवल पे लाए, क्योंकि 319 में जब उसे समन करना है तो ही हैज टू बी अ बिट मोर सेटिस्फाइड, अ बिट मोर देन प्राइमा फेसाई केस। तो बाय इटसेल्फ ये सारी चीजें सफिशिएंट हैं, बाय इटसेल्फ एग्जामिनेशन इन चीफ का स्टेटमेंट ही सफिशिएंट था। बट यहाँ पे जज ने क्या अपना डिस्कशन बहुत अच्छा दिखाने के लिए क्या किया, वेट किया कि हम उस स्टेज पे भी रुक जाते हैं, क्या कहते हैं, टिल द टाइम डिफेंस का विटनेस ना एग्जामिन हो जाए, तो फिर मैं जब उनसे सवाल पूछूंगा देन आई विल कम टू अ कंक्लूजन। दूसरा एक सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ। अब लेट अस सपोज कि पुलिस ए का नाम तो लिख लेती है एफआईआर में पर उसे चार्जशीट नहीं करती। तो इन दिस केस यू शुड रिमेंबर धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि इन दिस सिचुएशन the moment the case is committed to the session judge can resort to they can not only arraign the accused under section 193 of the CRPC, but he need not wait till 319 of the CRPC। वो 193 में भी सीधे ऐसे accused को अरेंड कर सकता है जिसको पुलिस ने चार्जशीट नहीं की पर जिसका नाम सेकंड कॉलम में दिख रहा है और पुलिस कह रही कि नहीं इसने कोई ऑफेंस नहीं किया, उसको भी 193 में घसीट सकता है सेशन जज इफ ही वांट्स टू। आई गेव यू दिस केस लॉ व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट 193। और अगर उस लेवल का सेटिस्फैक्शन अरेंज करने के लिए उसको चाहिए कि उसे प्राइमा फेसाई लगता है, देन अगेन इसके लिए भी 319 ऑफ द CRPC के लिए भी सेशन जज को एक प्राइमा फेसाई सेटिस्फैक्शन चाहिए कि इवन दो द केस हैज बीन कमिटेड टू मी, और मान लीजिए इंक्वायरी स्टेज पे है, अभी चार्ज नहीं फ्रेम हुआ है, डिस्चार्ज की स्टेज से पहले की बातें हैं, एंड द प्रोसिक्यूशन अभी सिर्फ इसी स्टेज पे है कि वो बता रहा है कि बाय व्हाट एविडेंस ही प्रपोजेस टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड। तो वो मटेरियल जब सेशन जज कंसिडर करता है तो वो देखता है कि चार्जशीट में इनका भी नाम था पर इनको अरेंज नहीं किया गया, और मटेरियल कंसिडर करके जज को लगता है कि प्राइमा फेसाई केस सेटिस्फाई हो गया, और प्राइमा फेसाई केस से इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा ही है। सो इन दैट सिचुएशन इट कैन समन 300, इट कैन रिजॉर्ट टू सेक्शन 319, he can resort to section 319 of the CRPC and can summon such person directly। ठीक है, so these options are always available to the session judge। और 319 को आप दोनों सिचुएशन में याद रखिएगा कि ट्रायल की भी स्टेज पे यूज हो सकता है और आपकी इंक्वायरी के भी स्टेज पे यूज हो सकता है, कोई रिस्ट्रेंट नहीं है। रिस्ट्रेंट बस इतनी सी है कि आफ्टर कंसिडरिंग द मटेरियल प्लेस्ड बिफोर हिम जज को प्राइमा फेसाई केस से थोड़ा सा ज्यादा बट शॉर्ट ऑफ कन्विक्शन सेटिस्फाई होना चाहिए। ऑलराइट, ट्रायल के टाइम पे वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इंक्वायरी की स्टेज पे तो आप किसी को आराम से ही समन कर सकते हो, लेकिन ट्रायल के टाइम पे आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर एविडेंस चाहिए देन द मेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज कॉम्प्लिसिटी। द टेस्ट दैट हैज टू बी अप्लाइड इज द वन विच इज मोर देन अ प्राइमा फेसाई केस which is exercised at the time of framing of the charge, but short of satisfaction to an extent of conviction। उससे conviction से कम और चार्ज फ्रेमिंग से थोड़ा ज्यादा, चार्ज फ्रेमिंग से थोड़ा ज्यादा मतलब प्राइमा फेसाई केस से थोड़ा ज्यादा, और इंक्वायरी की स्टेज पे भी समन कर सकता है अगर उसको वही सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, तो ही कैन रिजॉर्ट टू सेक्शन 319 ऑफ द CRPC। और ध्यान रखिए अगर एक बार 319 ऑफ द CRPC को रिजॉर्ट करके यू मेक अ पर्सन स्टैंड अ ट्रायल बिफोर योर सेल्फ, अगर आप लोग जैसे जजेस हैं तो इफ यू मेक अ पर्सन स्टैंड ट्रायल, ऐसे पर्सन को आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ट्रायल शब्द का यूज हुआ है और जहां पे भी ट्रायल हुआ है वहां पे कभी भी डिस्चार्ज नहीं हो सकता। पूरी CRPC में अगर चार्जेस फ्रेम हो गए यू विल ऑलवेज फाइंड द वर्ड अक्विटल अगर उसे अक्विट करना है, और कन्विक्शन अगर उसे कन्विक्ट करना है, बट यू विल नेवर फाइंड द वर्ड डिस्चार्ज। डिस्चार्ज हमेशा चार्ज फ्रेमिंग से पहले की स्टेज होती है, रिमेंबर दैट, ये डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा। एज लॉन्ग एज यू रिमेंबर दिस डिस्टिंक्शन you will not be confused in the terminologies of law ever, कभी भी नहीं होगा ऐसा। तो ये 319 का नुआंस था। अगर इसको लेके कुछ ना समझ में आए तो प्लीज यू कैन पोस्ट क्वेश्चंस ऑन द अगोरा फोरम। तो 236 भी हम लोग ने डील कर लिया था लास्ट टाइम, प्रीवियस कन्विक्शन वाला।
अब डील करेंगे प्रोसीजर इन द केस इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 199 सबसेक्शन 2। ये याद होना चाहिए आपको, ये जब स्पेशल, ये वो सिचुएशन है जहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकता है अंडर 199(2), जहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर एसेट्रा एसेट्रा या पब्लिक सर्वेंट को लेके एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कंप्लेंट फाइल किया कोर्ट को विद इन द पीरियड ऑफ 6 months व्हेन द डिफेमेशन इज अलेज्ड। तो ऐसे केस में एक स्पेशल प्रोसीजर 237 बता रहा है कि उसको डील कैसे करेंगे आप। पहली बात तो इट शैल बी डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट का मतलब क्या है कि वो माना जाएगा कि जो उसका ट्रायल होगा वो वैसे नहीं होगा जैसा कि पुलिस रिपोर्ट पे होता है। और दूसरी चीज जो इसके लिए एसेंशियल है वो होगा, इसका जो ट्रायल होगा वो वारंट केसेस की तरह होगा जो मैजिस्ट्रेट ट्राई करता है, वो सेशंस ट्रायल की तरह नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये फंडामेंटल डिफरेंस पहला याद रखिएगा। नाउ आई विल रीड द सेक्शन फॉर यू। A court of session taking cognizance of an offence under subsection 2 of 199 shall try the case in accordance with the procedure for trial of warrant cases instituted otherwise than on police report before a court of magistrate. So otherwise than on police report का प्रोसीजर कहाँ पे है? ये है आपका 244 ऑफ द CRPC से शुरू होता है और 247 पे खत्म होता है। और आप बाकी कंक्लूजन ऑफ ट्रायल पे तो सबके लिए सेम है, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट पे बेस्ड हो या पुलिस रिपोर्ट पे ना बेस्ड हो। तो हम लोग धीरे धीरे सारा चीज़ें करेंगे, कंक्लूजन ऑफ ट्रायल भी करेंगे। अब तो सारी चीज़ें आसान हो गई हैं क्योंकि हम लोग ने सारे नुआंसेस ऑफ लॉ से डील कर लिया है। सो नथिंग इम्पॉर्टेंट इज नाउ लेफ्ट। अब सिर्फ सेक्शन रीडिंग और क्या क्या हो सकता है CRPC में, क्या क्या नहीं हो सकता है, ओनली दैट इज लेफ्ट। सो subsection 2 of section 237 says every trial under this section shall be held in camera if either party thereto so desires or if the court thinks fit to or if the court thinks fit so to do। इन कैमरा का मतलब ये नहीं कि वो जो वीडियो कैमरा है उसकी वो यूज होगा। इन कैमरा का मतलब ये है, ये लैटिन शब्द है, इसका मतलब है इन एब्सेंस ऑफ द पब्लिक फोन, की पब्लिक के साथ नहीं रहेंगे। इन कैमरा का लैटिन में लिटरली मतलब होता है इन एब्सेंस ऑफ द पीपल, ज्यादा लोग वहां पे नहीं होंगे। तभी वहां पे ये कह रहा है कि एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन शैल बी हेल्ड इन कैमरा इफ द आइदर पार्टी सो डिजायर्स, मतलब इन एब्सेंस ऑफ द अदर पीपल, पब्लिक नहीं वहां पे शामिल होगी। तो इन कैमरा ये लैटिन शब्द में यूज हुआ है, ये इंग्लिश के शब्द का नहीं यूज हुआ है। ऑलराइट, सो कीप दिस इन माइंड। If in any such case the court discharges or acquits all or any of the accused and is of the opinion then that there was no reasonable ground for cause for making the accusation against them or any of them, it may, by its order of discharge or acquittal, direct the person against whom the offence was alleged to have been committed, other than the president, vice president, or the governor of the state or the administrator of the union territory, to show cause why he should not pay compensation to the accused or each of the accused when there are more than one। तो एक बात बताइए, एक बात सोचिए कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ अ स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी के लिए एक्सेप्शन क्यों है? बिकॉज ऑफ आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑलराइट, दैट इज वाई वो उनको फाइन नहीं दे सकता टिल द टाइम दे आर इन द टर्म ऑफ ऑफिस। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जो कंपनसेशन है ना, ये अदर देन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर है। जो आपका मिनिस्टर है उसको ऑर्डर किया जा सकता है कंपनसेशन के लिए। आपका पब्लिक सर्वेंट जो शामिल है उसको ऑर्डर किया जा सकता है, जिसने केस इंस्टीट्यूट करवाए, बी इट मिनिस्टर और द पब्लिक सर्वेंट, एज द केस में बी अंडर 199। तो उनको लेके उनको ऑर्डर कर सकता है कंपनसेशन के लिए कि वो सारे अक्यूज्ड को कंपनसेशन दें, अगर एक से ज़्यादा है तो, और अगर एक है तो एक को दे दें। द कोर्ट शैल रिकॉर्ड एंड कंसिडर एनी सच कॉज विच मे बी शोन बाय द पर्सन सो डायरेक्टेड। अब शो कॉज नोटिस सबसे पहले दिया जाता है बिफोर ऑर्डरिंग द कंपनसेशन। तो शो कॉज नोटिस में वो पहले कॉज कंसिडर करेगा कि वो क्यों बताता है कि आपको कंपनसेशन ना देनी पड़े। तो मिनिस्टर बता सकता है कि मैं गुड फेथ में मैंने ऐसा किया, मुझे नहीं पता था कि
उसने ऐसा नहीं कहा, लेट अस सपोज ट्रायल पे बहुत सारी चीज़ें प्रूव हो गई कि ये मैलाफाइड एक्सरसाइज ऑफ पावर थी अंडर 199(2), और ऐसे केस में मिनिस्टर कंसर्न्ड को डिफेमेशन कंस्ट्रू नहीं करना चाहिए था, तो सेशन जज के सामने मिनिस्टर ये ग्राउंड्स ले सकता है कि मैंने मैलाफाइड ने मेरा बोनाफाइड फेथ था और मुझे जहाँ जहाँ मुझे ओपिनियन पता चले और मैंने ड्यू केयर और अटेंशन को ध्यान में रख के पब्लिक प्रोसिक्यूटर को परमिशन दिया टू फाइल सच अ केस। तो इफ सच मिनिस्टर इज एबल टू प्लेस सच मटेरियल बिफोर द सेशन जज, जिससे सेशन जज सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ उसके पास रीजनेबल कॉस्ट था फॉर मेकिंग सच कंप्लेन, तो वो कॉम्पनसेशन नहीं ऑर्डर करेगा। लेकिन अगर उसको लग जाता है देयर वाज नो रीजनेबल कॉस्ट फॉर मेकिंग द एक्यूजेशन, देन ही कैन मेक एन ऑर्डर दैट द कंपनसेशन फॉर सच अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1000 rupees as it may determine be paid by such person to the accused or each of them. Compensation awarded under subsection 4 shall be recovered as if it were a fine imposed by the magistrate. Fine imposed by the magistrate कैसे कहाँ पे recover होता है? Section 421 of the CRPC. All right. तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में आने चाहिए कि वारंट फॉर अ लेवी ऑफ फाइन कहाँ पे रिकवर होगा, कि जैसे आपको 421 ऑफ द CRPC हो गया। सो ये सारा आप इंटरलिंक करना जान जाइएगा। ये मेंटेनेंस में भी ऐसे ही रिकवर होता है, सो बी वेरी सर्टेन कि कहाँ पे कौन सा सेक्शन यूज होना चाहिए। देन subsection 6 says no person who has been directed to pay a compensation shall by the reason of such order be exempted from a civil or criminal liability in respect of the complaint made under this section. तभी 1000 का अमाउंट इतना शॉर्ट रखा गया है क्योंकि you always have the option to institute a civil suit for damages, और अगर ऐसा एक्यूजेशन डिफेमेशन बनाता है आपके खिलाफ, डिफेमेशन का केस बनाता है, तो यू कैन ऑलवेज इंस्टीट्यूट अ केस ऑफ डिफेमेशन अगेंस्ट सच मिनिस्टर और सच पब्लिक सर्वेंट जिसने आपके खिलाफ ऐसा केस किया। डिपेंडिंग ऑन अ सिचुएशन, हो सकता है कि अगर उसने झूठ बोला कोर्ट के सामने आके तो पर्जरी का भी केस बन सकता है। तभी वो सबसेक्शन 6 कहता है, वो एक तरीके से सेविंग क्लॉज है, वो कहता है कि सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी से एग्जेम्प्ट नहीं होगा मेरली बिकॉज ही हैज बीन डायरेक्टेड टू पे कंपनसेशन, प्रोवाइडेड दैट कि अगर एंड में आपको कंपनसेशन मिलती है सिविल कोर्ट से तो जो भी कंपनसेशन यहाँ दी गई है उसको ध्यान में रखा जाए। अगर आप इसको जुक्सटापोज करेंगे सेक्शन 95 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड से, तो वहाँ पे जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दैट कैन बी ऑर्डर्ड फॉर obtaining a wrongful temporary injunction or by obtaining a wrongful order of arrest or attachment under order 38 and 39 respectively, so in that situation जो order of compensation section 95 of the CPC में है वो 50,000 का compensation है, but it bars your right to sue for compensation. All right, but this section does not. So तभी यहाँ पे liability इतनी कम है क्योंकि वो properly it is leaving to the civil court to determine the issues of liability कि कितना liable होना चाहिए और कितना liable नहीं होना चाहिए. That is why it is doing that. अब subsection 7, the person who has been ordered under subsection 4 to pay the compensation may appeal from the order insofar as it relates to payment of compensation to the high court. तो high court को appeal कर सकता है. When an order for payment of compensation to an accused person is made, compensation shall not be paid to him before the period allowed for the presentation of appeal has elapsed, or if the appeal is presented before the appeal has been decided. Alright. So, for today we can also read the trial of warrant cases. First we'll read the cases instituted on police report. ध्यान रखिएगा 238 से लेके आपका 243 तक केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट है। दोनों ही वारंट ट्रायल है पर इन दोनों का ट्रायल अलग होगा। ऑलराइट, ये अलग अलग फॉर्म्स हैं उसके, प्रोसीजर अलग अलग है, सो बी वेरी पर्टिकुलर ऑफ दैट। सेक्शन 238 कहता है कंप्लायंस विद सेक्शन 207। व्हेन द वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन द पुलिस रिपोर्ट अक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर द मैजिस्ट्रेट एट द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल। अपीयर मतलब वो खुद आ जाए या वॉलंटरी सरेंडर कर दे, और ब्रॉट बिफोर द मैजिस्ट्रेट या हो सकता है अरेस्ट से। अब अक्यूज्ड का अपीयरेंस कैन बी आइदर बाय समन और वॉलंटरी सरेंडर, बट इफ ही इज ब्रॉट बिफोर द मैजिस्ट्रेट एट द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल ही इज ब्रॉट
by the way of arrest. The magistrate shall satisfy himself that he has complied with the provision of 207. तो 207 का जो procedure है, if you remember, I have dealt with long before. इसमें पुलिस रिपोर्ट 154 का FIR जो भी थी, चार्जशीट थी, statement of witness under 161, statement and confessions under 164, any other document on which the prosecution proposes to rely on, ये सारे भेजने पड़ते हैं. All right. When an accused shall be discharged, 239. अब एक चीज ध्यान रखिए, वही पैरामीटर्स जो मैंने आपको डिस्चार्ज के लिए बताए थे सेशन जज के, वो सेम पैरामीटर यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे. दैट इज वाई हमें सेशन जज के डिस्चार्ज पे इतना टाइम लग गया, क्योंकि वहां पे जो ट्रायल पे जितने इश्यूज हमको डील करने थे वो सारे हमने यहीं पे डील कर लिए. सो अब हमारे लिए ये सिर्फ बेयर एक्ट का वो रह गया है, क्योंकि जितने भी नुआंसेस ट्रायल में होने थे वो तो हम पहले ही डील कर चुके हैं इन द सेशंस ट्रायल, तभी मैंने उसको इतना होलिस्टिकली डील किया. और यहाँ पे आपको बस वही कंसेप्ट अप्लाई करने हैं. All right, you just have to apply those things here. When the accused shall be discharged, if upon the considering the police report and the document sent with it under section 173, तो पहली चीज क्या मार्क कर लीजिए, पुलिस रिपोर्ट कंसिडरिंग क्या क्या कंसिडर होगा 239 में, पुलिस रिपोर्ट एंड द डॉक्यूमेंट सेंट विद इट अंडर सेक्शन 173. क्या क्या डॉक्यूमेंट सेंट होते हैं? सो ऑलवेज कीप इन माइंड सेक्शन 173 सबसेक्शन 5. जिस तरीके से मैं बोलता हूँ ना सेक्शन बिना देखे और बिना ध्यान दिए, यू शुड ऑल्सो हैव दिस हैबिट. और ये हैबिट कैसे आएगी? आफ्टर व्हेन यू कॉन्स्टेंटली रीड करिए, इवेंचुअली यू विल रीच अ लेवल जहाँ पे आपको बहुत आराम से चीजें आप बता लेंगे. एंड मेकिंग सच एग्जामिनेशन इफ एनी ऑफ द अक्यूज्ड एज द मैजिस्ट्रेट थिंक्स नेसेसरी, एंड आफ्टर giving the prosecution and accused an opportunity of being heard, the magistrate considers the charge against the accused to be groundless. He shall discharge the accused and record his reasons for doing so. तो क्या करेगा? He'll consider the report and documents under 173, and he'll give an opportunity to the accused for a hearing, और prosecution को भी hearing का मौका देगा. लेकिन कंसिडरेशन के लिए कोर्ट यहाँ पे क्या लिखा गया है? सिर्फ पुलिस रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स अंडर 173. इसका मतलब ये वही डॉक्यूमेंट्स है जिसपे प्रोसिक्यूशन रिलाई करेगा. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ले डाउन किया है कि यू कैन नॉट कंसिडर द एविडेंस ऑफ द डिफेंस एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ एट द स्टेज ऑफ डिस्चार्ज. एट द स्टेज ऑफ डिस्चार्ज यू कैन नॉट कंसिडर द एविडेंस ऑफ डिफेंस. आप हमेशा उसका समेशन तो सुन सकते हैं, सुनवाई तो कर सकते हैं कि आप सुन लो उसे कि वो क्या कह रहा है, बट यू कैन नॉट कंसिडर इस एविडेंस. आप क्या कंसिडर करेंगे 239 में? रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स. टर्मिनोलॉजीज का बहुत ध्यान रखिएगा, ये टर्मिनोलॉजीज ही विल गेट यू मोस्ट अमाउंट ऑफ नंबर्स. So if he considers the charge to be groundless, he shall discharge the accused and record his reasons for doing so. ध्यान रखिएगा पैरामीटर्स वही हैं जो मैंने आपको बताए थे प्रफुल्ल कुमार सामल वाले केस में, और जो जनरल गाइडलाइंस डिस्चार्ज की हैं वो सेम इस पे भी अप्लाई करेंगी, वो सेम डिस्चार्ज के अंडर 245 पे भी अप्लाई करेंगी. नेक्स्ट इज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज. इफ अपॉन सच कंसिडरेशन, एग्जामिनेशन and hearing, the magistrate is of the opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offense triable in this chapter. ये कौन सा लेवल होगा satisfaction का? prima facie. Which such magistrate is competent to try and which in his opinion could be adequately be punished by him, he shall frame in writing a charge against the accused. The charge shall then be read and explained to the accused, and he shall be asked whether he pleads guilty of the offense or claims to be tried. ठीक है? तो यही charge shall be read over to the accused and he shall be asked whether you plead guilty or claims to be tried. अगर उसने plead guilty कर लिया तो magistrate may in his discretion may convict him thereon. 241 में. अब याद है मैंने आपको बोला था कि सेशंस ट्रायल के पास बड़ी स्पेशल स्टेज होती है 232 में. ये देखिएगा यहाँ पे नहीं आएगी, जहाँ पे इवन आफ्टर कंसिडरिंग द एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन ही मे अक्विट द पर्सन, ऐसी स्टेज नहीं आती है वारंट ट्रायल में. वारंट ट्रायल में आफ्टर कंसिडरिंग द एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन अक्यूज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंटर्स इनटू अ डिफेंस. सो 242 कहता है एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन. इफ द अक्यूज्ड रिफ्यूजेस टू प्लीड, डज नॉट प्लीड और क्लेम्स टू बी ट्राइड, और द मैजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 241, द मैजिस्ट्रेट शैल फिक्स अ डेट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ witness, provided
The magistrate shall supply in advance to the accused the statement of witness recorded during the investigation by police. ये जितने भी ये इसका पर्पस ये है of providing the statement of witness recorded during the investigation कि लेट अस सपोज अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन है हुई है और फिर एक्स्ट्रा एविडेंस आया है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट भेजी गई है, तो ही कैन ऑलवेज रिजॉर्ट टू दिस प्रोवाइजो, क्योंकि 207 में तो उसको ऑलरेडी ये सब सबमिट करना था, 207 के प्रोविजन को तो कंप्लाई ही करना था उसको पहले ही, तो ही शुड ऑलवेज सबमिट दैट टू हिम. और दूसरा पर्पस क्या है, टू सप्लाई इन एडवांस टू द अक्यूज्ड स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन टू अवॉइड द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज. डिफेंस को तो पता तो होना चाहिए कि यहाँ पे आके क्या बोलने वाला है, सो दैट ही इज इन अ पोजीशन टू क्रॉस एग्जामिन हिम, ही इज इन अ पोजीशन टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम इफ ही वांट्स. ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीजें होती हैं. देन सबसेक्शन 2, द मैजिस्ट्रेट में on the application of the prosecution issue a summons to any of the witness directing him to attend or produce any document or other thing. You have to read it with section 91 or 93 of the CRPC as well, कि document अगर कोई चीज बुलानी है या for the purpose of aid in inquiry trial, तो you या other proceeding you can resort to section 91 93 on the request of the prosecution. 93 में you have your provision for search warrant. Let us suppose a person does not comply with section 91, तब क्या करेंगे? You will then resort to section 93. On the date so fixed, magistrate shall proceed to take all evidence as may be produced in the support of the prosecution. तो वो सारा वो evidence लेगा as the prosecution wants to produce in his support, provided that the magistrate may permit the cross-examination of any witness to be deferred until any other witness or witness has been examined, or recall any witness for further cross-examination. So it is in pari materia to the session trial वाले में, तो काफी सेक्शन मिलते जुलते हैं. ठीक है, लेकिन मिलते जुलते का मतलब ये नहीं कि ये सेम है, they are not same, क्योंकि अभी चीजें बदल जाती हैं थोड़ा आगे चल के. सेशन ट्रायल डिफरेंशिएट नहीं कर रहा था वेदर इट वाज अ कंप्लेंट केस और अ पुलिस केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 237, but the warrant trial is differentiating between the case instituted on police report and the case instituted on complaint or on his own knowledge. All right, क्योंकि if you remember the magistrate can also take the cognizance of a case on his own knowledge, तभी rather than calling this a complaint case, जो 244 से लेके 247 तक का प्रोसीजर है उसको कंप्लेंट केस बोलने की बजाय उसको बोला है केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट. ऑलराइट, सो इट इंक्लूड्स बोथ ऑफ द थिंग्स. सो कमिंग बैक टू द केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, सेक्शन 243, एविडेंस फॉर डिफेंस. अक्यूज शैल देन बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर अपॉन हिज डिफेंस एंड प्रोड्यूस हिज एविडेंस, and if the accused puts in any written statement the magistrate shall file it with the record. तो वो फाइल कर देगा रिकॉर्ड पे जो भी evidence, whatever the written statement he puts up. If the accused after he is entered upon his defense applies to the magistrate to issue any process for compelling the attendance of a witness for the purpose of examination or cross-examination or production of any document or other thing, the magistrate shall issue such process unless he considers that the application should be refused on the ground it has been made for the purpose of vexation, delay or defeating the ends of justice, and the ground shall be recorded by him in writing. So again it is very similar to the position under section 233 of the CRPC, जहाँ पे सेशंस ट्रायल में वो डिपेंड कर रहा है. पर आपने ध्यान दिया होगा 232 नहीं है, 232 इज फॉर अ बेनिफिट ऑफ द अक्यूज्ड, कि जहाँ पे प्रोसिक्यूशन के एविडेंस कंसिडर करने के बाद भी इट डजंट फाइंड एनी केस, देन ही कैन अक्विट द अक्यूज्ड. सेशंस ट्रायल सेशन जज ये कर सकता है because there is a specific provision under 232, but same is not available in a warrant trial. All right, ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखा करिए. यही सब जो अवेयरनेस और when you are able to differentiate कि warrant trial में ये नहीं है, sessions trial में ये है, या summon trials में ये चीज़ें नहीं है और warrant trial में ये, it gives you the clarity of concept. All right. Then under section 243 in the proviso it says, provided that when the accused has cross-examined or had the opportunity of cross-examining any witness before entering on his defense, the attendance of such witness shall not be compelled under this section unless the magistrate is satisfied that it is necessary for the ends of justice. All right.
इस सेक्शन का भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब मार्क कर लीजिएगा. If the accused has cross-examined or had the opportunity to cross-examine any witness before entering on his defense, the attendance of such witness shall not be compelled unless it is essential for the ends of justice. आप इसको एक और सेक्शन से इक्वेट कर सकते हैं, जो सेक्शन 309 है, जो बताता है कि अगर मान लीजिए पार्टी के सामने विटनेस प्रेजेंट है जिसको वो क्रॉस एग्जामिन कर सकता है. If you remember, it should be section 309 subsection 2's last proviso का पार्ट सी होगा. तो पार्ट सी देखिएगा उसका अंडर सेक्शन 309 प्रोवाइजो अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 309. उसका पार्ट सी देखिएगा, वो सीधे कहता है कि अगर कोर्ट को लगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए विटनेस को बुलाया है पर पार्टी इज नॉट रेडी टू क्रॉस एग्जामिन हिम, it may even dispense with such cross examination or examination in chief after complying with the provision that has been laid under section 309. all right, तो उससे भी आप रिलेट करिए. तो कीप योर माइंड वेरी फर्टाइल कि ये कहाँ से लिंक हो सकता है. लिखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान में रखने की जरूरत है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि जज ऐसा कर सकता है. ये नहीं कि जज करेगा ही, हर स्टेज में ऐसा नहीं होता. ऑल राइट, so that is why keep this proviso in mind, और इसे मार्क कर लीजिएगा. और then I come to the subsection 3 of section 243 जो कहता है magistrate में before summoning any witness on an application under subsection 2 require that reasonable expenses incurred by the witness in attending for the purpose of trial be deposited in the court. कि जो भी expenses हैं जो विटनेस को आने जाने में लगे वो आपको ट्रायल में वो आपको कोर्ट में डिपॉजिट करने होंगे. अब मान लीजिए किसी का एयर फेयर है, वो दिल्ली से लखनऊ आ रहा है, तो एयर फेयर का टिकट मान लीजिए 3,000 रुपये लगा. कोर्ट कहेगा कि ऐसे विटनेस को इफ़ यू हैव टू समन यू डिपॉजिट 3,000 रुपीज़ जस्ट इन केस हिज रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड कैन बी गिवन. और ये भी होगा कि मान लीजिए कि उसका बिजनेस आवर का टाइम था और ये बहुत ही वो अर्न करता था let us suppose 2,000 per hour और he lost an opportunity, उसे half day लेके आना पड़ा. In such case also the accused may have to if the court is so inclined he may have to compensate such witness for his loss of time and expense also under subsection 3. तभी यहाँ पे reasonable expenses का यूज किया गया है. तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा. Tomorrow we'll deal with the rest of the provisions जो हैं. I will also elaborate कि बाकी चीज़ों में और क्या है. नेक्स्ट जो पॉइंट पे हम लोग का नुआंस आएगा वो है सेक्शन 300 पे. सेक्शन 300 पे आएगा. उसके बाद CRPC will start getting simpler. फिर अपील और रिवीजन एक बचा है, इनहेरेंट पावर और कंपाउंडिंग बचा है, फिर लास्ट में आपका मेंटेनेंस बचता है. दैट्स इट. मेजॉरिटी ऑफ द CRPC खत्म आपकी. So we are moving quite fast. मैंने सोचा था कि ये अगस्त में ख़त्म होगा, बट एट दिस रेट तो जुलाई के फर्स्ट वीक में ही ख़त्म हो जाएगा. दैट इज़ गुड, आप ही लोग के लिए अच्छा है. So that will be enough for today. See, I'll elaborate upon more things regarding the provisions of the CRPC tomorrow. और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि जो मैंने सेशंस ट्रायल पे दिए हैं आपको, सेक्शन 309, 311, 319, 313, ये नुआंस प्रोविजंस हैं एंड यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड. एक चीज़ और याद रखिएगा कि ट्रायल ऑफ वारंट केसेस में 342 में आफ्टर एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन इज कंडक्टेड, तो नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी? 313B का एग्जामिनेशन. यू रिमेंबर दैट. ऑल राइट, मेरली बिकॉज 342 के बाद सीधे 343 लिखा है. यू विल नॉट थिंक दैट 313B का एग्जामिनेशन डिस्पेंस विद हो गया है. 313B का एग्जामिनेशन होगा ही होगा. इट इज़ अ मैंडेटरी प्रोविजन. तो नीचे से लिख लीजिए 242 के पास में examination after the examination of 313 subsection 1B, the next provision that will enter in the scene is entering evidence for defense. All right, so that is enough for today. We'll deal with the rest of the things tomorrow.